بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر رمضان کے آخری دن میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو، رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستارے چمکانا چاہتے ہو، تو پھر اس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایسا پاورفل اور خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی رمضان کے آخری عشرے میں 29 روزے آخری منگل کے دن یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں، اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے آج 29 رمضان کے آخری منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا، اللہ پاک نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اللہ پاک نے اس کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دیا، اللہ پاک نے اس کی زندگی سے مصیبتوں کو ختم کر دیا، اللہ پاک نے اس کی ہر حاجت کو قبول کر لیا۔ آج میرے بھائیوں، اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھ لینا۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو مس کر دیا نا یا چھوڑ دیا تو ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ایسا آج کا پاورفل اور زندگیوں کو، ٹینشنوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے والا وظیفہ آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ اللہ والو، یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شریف ہے جس کے اوپر دین اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی مدد کے نظارے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں آخری منگل کے دن جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک 1500 کروڑ بھی مانگو گے نا تو مل جائیں گے۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، بخشش والا اور جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک موقع بڑا قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرما دیتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں منگل کے دن 29ویں روزے کو آپ لوگ جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو وہ ضرور عطا کریں گے۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں آخری منگل کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج منگل کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج منگل کے دن مانگنے والے رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج 29 روزے 29 رمضان مبارک منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت کے وعدے لے کر آتا ہے۔ اللہ والو، جو بندہ رمضان کے شب و روز اگر وہ اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ پاک سے جس چیز کی حاجت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں، یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اللہ پاک نے اس مہینے میں اتنی فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات کو ربوبیت جانتے ہوئے، ہر خالق کے کل مانتے ہوئے، جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کے جب اللہ پاک سے وہ کامل دعا مانگتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس کو ہر چیز سے بے نیاز فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے، اللہ کی ذات اس کو سارا سال رزق سے نوازتی ہے۔ اللہ والو، آج موقع ہے، آج زندگی موقع دے رہی ہے، پھر سارا سال تو ہمیں ویسے ہی اپنی دنیا میں مگر رہنا ہوتا ہے۔ آج محنت کر لو، آج کی محنت کل کی آسانی کا باعث بنے گی۔ اگر کوئی بندہ آج کچھ بھی لے کے بیٹھے گا، کوئی اپنی خاص حاجت صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو 29 رمضان منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کے دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا عشرہ بھی ختم ہو چکا ہے، آخری موقع ہے، آخری دن ہے۔
आखिरी मंगल का दिन तवज्जो कीजिएगा, मंगल के दिन रब करीम तौबा करने वालों को फौरन माफ फरमा देता है, कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। अगर कोई पूरा साल तंगदस्ती में है, पूरा साल गुनाहों में, पूरा साल बदकारी में, पूरा साल बदबख्ती में, पूरा साल गीबतें, बोहतान, चुगलियां, मजाक करना, दूसरों को रिस्वा करना, पूरे साल के गुनाहों में अगर वो लुथड़ा हुआ है, अगर वो पूरे साल के गुनाहों में जकड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने इस अमल को एक बार करने से अल्लाह पाक पूरे साल की पूरी जिंदगी के आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शने पे कुदरत रखता है। अल्लाह वालों, आज सच्चे दिल से इस अमल को करके देखो। आज सच्चे दिल से आपने इस वजीफे को एक बार करना है। आपकी आंख से निकला हुआ आंसू आज जहन्नम की आग को भी बुझा देगा। अल्लाह वालों, अगर अपनी आंख के आंसू से पूरी जहन्नम की आग को अपने ऊपर हराम करवाना चाहते हो, तो फिर इस अमल, इस वजीफे को 29 रमजान मुबारक मंगल के दिन कर लेना। इंशाअल्लाह जहन्नम से निजात के इशरे में पूरे साल के गुनाहों की तौबा करने वाले की फौरन तौबा कबूल हो जाएगी। मेरा रब तो इतना रहमान है, इतना रहीम है कि एक बंदा पूरा साल गुनाह करता है, पूरा साल गलतियां करता है, कोताहियां करता है, अल्लाह और अल्लाह के हबीब को नाराज करता है, और जब रमजान के महीने में तीसरे अशरे में जहन्नम से निजात के अशरे में सच्ची तौबा करता है, तो रब की जात पूरे साल के गुनाहों को 1 मिनट में माफ फरमा देती है। रब करीम अपने प्यारे हबीब की उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाती है कि रमजान का महीना हमारे लिए तोहफा है। रमजान का महीना पूरी उम्मत के लिए खजाने लूटने का मौका है। अगर कोई बंदा पूरा साल तंगदस्ती में, लाचारी में, मजबूरी में, बेबसी में गुजार चुका है, बेहद मेहनत और मुशक्कत के बावजूद भी घर के खर्चात पूरे नहीं हो रहे, घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो एक बार 29 रमजान मुबारक के दिन बख्शिश के अशरे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा अरबपति बन जाएगा। औरत अगर इस अमल को करना चाहती है तो वो इस वजीफे को जिसका नाम लेके पढ़ेगी, 29 रमजान मुबारक मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ेगी, रब की जात उस बंदे के मुकद्दर के सितारों को चमका देगी। अगर आप रब करीम के कमालात को, रब के मौजूजात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो 29 रमजान मुबारक मंगल के दिन आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये एक ऐसा कलमा है जिसे पढ़ने से इस बात का इकरार हो जाता है कि अल्लाह एक है और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। आज हमारे मोमन होने की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है। आज अगर देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान इसके बनने की बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है। वो अलग बात है कि यहाँ पर निज़ाम ऐसा नहीं है, लेकिन बुनियाद तो यही थी। आज हमारी इस दुनिया में जीने का मकसद ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये वो कलमात है जो अर्श इलाही के साथ लटके हुए हैं। रब करीम इन कलमात को इतना पसंद फरमाते हैं कि जब कोई बेकारी, फकीर, तंगदस्त, लाचार, मजबूर रब को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पुकारता है, तो गायबी फरिश्ते मदद लेके आ जाते हैं। आपकी बेबसी, आपकी लाचारी, आपकी मजबूरियां 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगी। आज 29 रमजान मंगल के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये मौका एक बार मिलता है, अगर आज मंगल का दिन हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। अभी मौका है, मांग ले रब से खजाने लूटने का। जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, रब की जात फौरन अता फरमाएगी। आज रमजान मुबारक का तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का अशरा है। रब की बख्शिश की, रब की रहमत का दरबार लगा हुआ है। सारा साल जितने भी गुनाह करते हैं, इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, लेकिन आज 29 रमजान आखिरी मंगल के दिन ये एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की काबरीन के बताए हुए तरीके से पढ़िएगा। ये वो तरीका है जिनसे रब को मना लिया जाता है, रब को राजी कर लेते हैं। जब कभी मुश्किल वक्त आता है, जब कभी परेशानियां आती हैं, जब कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई उम्मीद तक नजर नहीं आती, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन को समेटना, आपकी कामयाबियों के रास्ते खुलेंगे, आपकी परेशानियां खत्म होंगी। अगर आप भी अपनी परेशानियों को खत्म कराना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, जापान से हैं, अमान से हैं, मस्कत से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 29 रमजान मुबारक आखिरी मंगल का दिन आ जाए, तो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा आज तक जिसको बताया रब करीम ने माला माल कर दिया, हर हाजत को पूरा फरमा दिया, हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना दिया। अल्लाह वालों, ये पीरों फकीरों का वजीफा है, ये अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह के दोस्तों का वजीफा है। आज अगर कोई कर्जदार है तो ये ना सोचे कि करोड़ों का कर्ज कैसे उतरेगा। करोड़ों का कर्ज भी फौरन उतर जाएगा, रास्ते बन जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे। अगर कोई बे औलाद है, साहिब औलाद के लिए पढ़ ले, नरीना औलाद मांग ले तो नरीना औलाद भी मिल जाएगी। अगर कोई बेघर है,
नया घर चाहता है और वो किराए के घर पे रहता है, वो दौलत शोहरत भी चाहता है, इंशाल्लाह इस अमल को करने से आपके ये तमाम मामलात में अल्लाह पाक की तरफ से कबूलियत जरूर हो जाएगी। रब करीम से आज मांग लेना, आज आपकी मांगी गई हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब करीम आपको खैर कसीर से नवाजेंगे, खैर रहीम से नवाजेंगे, रहमतों से नवाजेंगे, बरकतों वाला रिज़्क अता करेंगे। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? 29 रमजान मुबारक आखिरी मंगल का दिन, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जैसे वक्त मिल जाए आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, अब वजीफे का अमल का तरीका कार बता रहा हूँ। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप करने से वजीफे की कोई खास बात या कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इससे पहले 29 रमजान आखिरी मंगल के दिन की खुसूसी दुआ करूंगा। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए, हम सब की हर हाजत कामयाबी का जरिया बन जाए। अल्लाह के हुजूर दुआ कर लेते हैं। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ कर दे, हमारे तमाम सगीरा गुनाहों को बख्श दे मौला। बख्शने का महीना है, जहन्नम से निजात का अशरा है मेरे मौला। रमजान मुबारक में मंगल के दिन आज तेरे मांगते जो भी लोग हाजिर करके बैठे हैं इस अमल को पढ़ेंगे मेरे मौला, सबकी तमाम जायज हाजतों को पूरा फरमा दे, इनके दिल की तमाम जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे मेरे मौला। इनके जायज मकसदों में इनको कामयाबियों कामरानी नसीब फरमा दे मेरे मौला। अगर कोई बे औलाद है मेरे मौला, इसको साहिब औलाद कर दे मेरे मौला। अगर कोई तंग दस्त है और वो परेशान हाल है मेरे मौला, इस पे खुसूसी रहम करम की नजर फरमा दे मेरे मौला। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे मेरे मौला। सलामती वाला रिज़्क अता फरमा। जो माएँ परेशान है, जिनके बेटे नशों के आदी हैं मेरे मौला, इनकी नशों से जान छुड़ा दे मेरे मौला। जो बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, अपने वालिदैन को घर से बाहर निकाल देते हैं मेरे मौला, इनको हिदायत अता फरमा मेरे मौला। जो लोग भी अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं मेरे मौला, इन सब को नेक हिदायत अता फरमा मेरे मौला। फलस्तीन के मुसलमानों की तू गैब से मदद फरमा मेरे मौला। आज जहन्नम की आग से निजात का ये अशरा चल रहा है मेरे मौला, हमें जहन्नम की आग से महफूज रखना। जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, दुआओं में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पे बैठ के एक बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। असूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपनी मकसद की नियत करनी है। ये 29 रमजान मुबारक आखिरी मंगल का खास अमल है। ये बुजुर्गों के बताए हुए मुस्तनद और मुजर्रब अमाल है, जिनमें छोटी सी गलती कुताही की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए जैसे वजीफा बता रहा हूँ, जो तरीका, जो तरतीब, जो तादाद बताऊंगा, आपने ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप एक दिन के वजीफे से 1500 करोड़ भी मांगोगे ना तो मिल जाएंगे। अगर आप किसी नामुमकिन हाजत के लिए बैठ के पढ़ेंगे ना तो नामुमकिन हाजत भी मुमकिन में बदल जाएगी। बेहतर यह है कि वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अब आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, आप में से हर किसी का मकसद अलग है। आज वजीफा पढ़ने से पहले आपने अपने मकसद को जहन में रखना है। आप में से जिसको रिस्क चाहिए वो रिस्क की नियत कर ले। आप में से जो कोई बेरोजगार है रोजगार के लिए पढ़ ले। जो कोई बे औलाद है, कई सालों से औलाद नहीं हो रही, वो औलाद के लिए पढ़ ले। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल में आसानी फरमाएगा। आज कोई तंगदस्त है, बेकारी है, फकीर है, आप लोगों की जो भी हाजात हैं, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, इन सब के लिए आज अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आसानियां पैदा फरमा देंगे। बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अब फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लें। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ के आप लोगों ने जो है वजीफे का आगाज किया, अपने मकसद को ज़हन में रखा, फिर आप लोगों ने
ताउज़ और तस्मिया यानी कि आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और आप लोगों ने अब पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये रब्बुल आलमीन को 2 नाम है, ये मेरे रब की 2 सफ़ात हैं। या हाफिजु या सलामु का वजीफा है। अल्लाह वालों, आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, नजर बद हसद से मारता है। आज लोगों के चलते कारोबार बंद हो रहे हैं, जादू जिनात की वजह से आज जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों में बंदिशें हो गई हैं। आज या हाफिजु या सलामु को बताए गए तरीके से सिर्फ 11 बार पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी हर मकसद में हिफाजत यकीनी हो जाएगी। आज हर कोई चाहता है कि मुझे कामयाबी मिल जाए, चंद दिन में चंद हफ्तों में कामयाबी मिल जाए। कामयाबी का फायदा तब होता है जब वो कामयाबी बरकरार रहे। तो आप लोग जब इस अमल को पढ़ेंगे, इस अमल को करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी भी अता फरमाएगा और आपकी हिफाजत भी फरमाएगा और इस कामयाबी को बरकरार भी फरमाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप हमेशा की कामयाबी चाहते हैं, अगर आप हमेशा के लिए जादू जन्नात और नजर बद से हिफाजत चाहते हैं, बंद कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी चाहते हैं, अपनी औलाद को, अपनी दुकान को, अपने दफ्तर को, कारोबार को रब की हिफाजत में देना चाहते हैं और हमेशा के लिए देना चाहते हैं, तो आज 29 रमजान मुबारक आखिरी मंगल के दिन या हाफिजु या सलामु को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। या हाफिजु का मतलब क्या है? हिफाजत करने वाला। और या सलामु का मतलब क्या है? सलामती भेजने वाला। कि या हाफिजु या सलामु को मिला के पढ़ने से हमेशा की हिफाजत, हमेशा की कामयाबियां, हमेशा की खुशियां आपके मुकद्दर में लिख दी जाएंगी। आपने या हाफिजु या सलामु को 11 बार पढ़ना है। या हाफिजु या सलामु मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हाफिजु या सलामु मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हाफिजु या सलामु मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हाफिजु या सलामु, या हाफिजु या सलामु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 11 बार पढ़ना है। 11 का मतलब है कि ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। आपने तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत के साथ या हाफिजु या सलामु को पढ़ना है। आप अपनी औलाद के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने कारोबार के लिए, जवान बेटियों के रिश्तों के लिए और आपके दुनिया जहां के जो भी नेक मकासद हैं, इनमें कामयाबी के लिए, इनमें सलामती के लिए आप लोग या हाफिजु या सलामु को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 11 बार या हाफिजु या सलामु पढ़ने की देर है, आपके तमाम मकासद रब की हिफाजत में चले जाएंगे। अगर रब की हिफाजत में आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को नहीं छीन सकती। ये 29 रमजान आखिरी मंगल के दिन का खास अमल है, इस मौके को ज़ाया नहीं करना। यह मंगल साल में 1 बार आता है। मंगल बहुत से आएंगे लेकिन 29 रमजान का ये तीसरा इशरे में यह आखिरी मंगल साल में 1 बार आती है। आपने इस मंगल की कदर करनी है। यह मौका हाथ से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज 29 रमजान मंगल के दिन या हाफिजु या सलामु को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा मेरे भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा है। अब ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो बेरोजगार हैं, जिनके घर में फाके हैं, एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। वो दुखियारी बहनें जिनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, घर की लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा नहीं होता, तो आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, मसाइल का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का, बंदिशों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की देर है। ये वो कलमा तैयबा है कि अगर आप लोग अपने ईमान को तरोताज़ा करना चाहते हैं तो 1 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, अगर दुनिया जहां के तमाम जितने भी और वज़ाइफ हैं, इन सब को एक पलड़े में रख दिया जाए और इन पे 7 ज़मीन और 7 आसमान को भी रख दिया जाए और इनके दरमियान जितनी भी खैर है इन सब को भी रख दिया जाए और एक पलड़े में सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रख दी जाए, तो वो इन सारे अमाल, इन सारी बरकतों पे भारी होगी। आप खुद सोचें कि जब कोई बंदा दायरे इस्लाम में दाखिल होता है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ता है। एक काफिर सारी जिंदगी बुतों की इबादत कर रहा है, सारी जिंदगी अल्लाह पाक का नाफरमान रहा, और जब वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अल्लाह पाक की तरफ से इसको नाम क्या मिलता है कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। एक ऐसी जिंदगी के गोया वो अभी पैदा हुआ हो, ना इससे नमाजों का पूछा जा रहा है, ना इसने कहाँ वक्त गुजारा, बचपन जवानी कहाँ गुजारी, अब कलमा पढ़ लिया, अब तेरी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग परेशानियों में जिंदगियां गुजार रहे हैं और फिर आप लोगों को अल्लाह पाक की तरफ से ये वीडियो मिलती है, तौफीक मिलती है कि आओ 29 रमजान मुबारक मंगल के दिन आप लोग इस अमल को कर लो, अल्लाह वालों, अल्लाह पाक आपके मुकद्दर नसीब को बदल के रख देंगे। ये अमल कोई ऐसा अमल नहीं, ये कोई अपनी तरफ से बनाया हुआ अमल नहीं है, ये काबरीन के बतलाए हुए अमाल है। जब मेरी वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा कि वजीफा है क्या, वजीफे की फजीलत क्या है।
آپ کو समجھ میں تب آئے گی جب آپ لوگ ویڈیو بغیر اسکپ کریں گے دیکھیں گے. آپ لوگ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے دیکھتے ہیں, خاص بات آپ سے چھوٹ جاتی ہے, پھر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ وظیفوں کے اثر نہیں ہو رہے. خدا کا خوف کرو, اللہ کا نام پڑھو, قرآن پاک پڑھو, فائدہ نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا پھر ایمان کس کام کا کہ ہم لوگ اگر قرآن پاک کی آیت پڑھیں, ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں اور اسی حالت میں ہم لوگ ذکر و اذکار کریں, وظیفے کریں اور ان کا فائدہ نہ ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اب آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھ لی, مطلب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے وہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب اور پاورفل عمل ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہ 2 نام ہیں, لیکن ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے, خاص ترتیب ہے جو کہ احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے. نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایک بار ہو گیا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. 2 بار ہو گیا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں, صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. جب آپ لوگ 11 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیں, اس کے بعد چوتھے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ آپ نے اس مناسبت سے پڑھنا ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی ہے تو یقین کریں مقدروں کی معراج ہو جانی ہے, کیونکہ یہ رات آخری عشرے میں ڈھونڈنے کا حکم ہے, طاق راتوں میں بھی ڈھونڈنے کا حکم ہے. آج طاق رات ہے, اگر اللہ رب العالمین آج کی رات میں رکھ دی, کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے نا. اللہ پاک نے کہا کہ نبی پاک نے بتایا کہ خاص طور پر اس 5 طاق راتوں میں ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہا کہ 27 کی رات ہوگی. اکابرین فرماتے ہیں کہ صرف 10 بار سورۃ القدر لازمی پڑھ لیں. تو آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو 10 بار پڑھ لینا ہے, اور اس کے بعد 2 نوافل, صرف 2 نوافل پڑھیں گے. پہلی رکعت سورۃ القدر کی تلاوت کریں گے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھ لیں گے. اس طرح سے آپ لوگ دوسرا نفل مکمل کر لیں گے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے. ایک بار جو آپ نے اول پڑھا تھا, ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں. اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے. وہ بے نیاز ہے, ہر بندے کو بخشنے والی ذات ہے. ایک بار ضرور آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اور محترم ناظرین کرام, اپنے رزق میں برکت, وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں. جزاک اللہ.